Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine at home and doing well. As we have already completed the first chapter in history, now we are moving further to the chapter number 3, that is nationalism in India. Now the Indochina second chapter is omitted, so we are not doing that. We are directly moving further to the third chapter, okay, that is nationalism in India. Now the word nationalism, what it suggests, what do you mean by nationalism? When we talk about the word nationalism, it means feeling of people towards their own country. That is the nationalism, right? Now this word was familiar as we have done the first chapter, that is nationalism in Europe, right? Now in nationalism in Europe we have seen that जो यूरोप में नेशनलिज्म किया था, लाइक पीपल वहाँ हुए थे एंड नेशन स्टेट्स हो गया था वहाँ पे. व्हाट इज नेशन स्टेट्स? यू मस्ट बी नोइंग दैट. मीन्स दैट कि सुप्रीम रूलर या तो इंडिपेंडेंट स्टेट जहाँ पे all the people were united and they were sharing their same feelings with their understanding and all, like they were sharing their views, right? So वो सब हमने यूरोप में देखा था. And we also saw that a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. Like different types of people are there, but then too they were living in unity. We have seen all that things, the new symbols, icons, new songs, ideas. उसके वजह से पूरी communities जो है वो change हो गई. Means people need to change about it, right? In most countries जो ये मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस. बट हाउ दिस हैपेंड इन इंडिया, मतलब हर एक कंट्री में नेशनलिज्म करने के बाद अपनी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, फ्रीडम मिला. मीन्स दे फॉट मैनी टाइम्स फॉर द फ्रीडम. So what about India? How India got affected due to all these things? So we will start that Indian nationalism developed as a concept during the Indian independence. कि इंडिया में भी नेशनलिज्म हुआ था. नेशनलिज्म वॉज स्टार्टेड कब? तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि यस इंडिया वांट इंडिपेंडेंस नाउ, वी डोंट वांट दैट एनी रूलर विल रूल our country, right? So British Raj जब start हुआ, when Britishers started ruling our country, at that time we have started the nationalism, right? So we are going to study today about the India's nationalism and India's freedom movement and all that thing about India only. So in this chapter you will get to know the story from 1920s, and we will study about the non-cooperation, civil disobedience movement. I know that in 8th chapter you must have studied about this thing in detail, right? About the non-cooperation movement. But then too, in this chapter again we are going to study, you will also get to explore how Congress sought to develop the national movement. कि कांग्रेस मूवमेंट जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो टीम थी, उन्होंने कैसे ये नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, एंड हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, and how nationalism captured the imagination of people. That all we are going to study in this chapter, right? So let's start the chapter. This was the introduction part. Now the main topic will start about it, that is the First World War, खिलाफत and non-cooperation. Now when we talk about, अभी मैंने बात की कि 1920s से हम ये स्टोरी स्टार्ट करेंगे, तो आफ्टर 1919 we see that the national movement was spreading to the new areas, जिससे new social groups इनकॉर्पोरेट होने लगे, स्टार्ट होने लगे, डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल. सो नाउ कैसे डेवलपमेंट हुए, हाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 to 1918 में. सो बिकॉज ऑफ दैट वॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी सबकी वो डिप्रेस हो ही गई थी. एंड बिकॉज ऑफ द वॉर इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर. क्यों डिफेंस एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा आ गया? बिकॉज आफ्टर द वॉर सभी अपने प्रोटेक्शन के लिए, कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी रखने लगे. लाइक आर्मी फोर्स जो है, डिफेंस जो है, दे हैव स्टार्टेड. सो डिफेंस रखना मतलब वी विल हायर देम नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? वी हैव टू पे देम. सो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स लेनी पड़ी थी. एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस जो थे वो भी इंक्रीज़ हो रहे थे. टैक्सेस ऑन द कस्टम्स
right? Taxes on goods and all, custom duties were raised and income tax introduced. ये सब introduce हुआ था, उसके पहले कुछ नहीं था, but after 1919 this all things were introduced. फिर थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस जो है वो भी इंक्रीज हो गए थे बिटवीन 1913 एंड 1918 में प्राइजेस, बिकॉज 1914 से 1918 तो वॉर हो रही थी, तो एट दैट टाइम प्राइजेस ऑफ द गुड्स वो ऑलरेडी इंक्रीज हो रहे थे. विलेज जो थे, विलेजेस वो कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, विलेजेस को बोला गया था कि आप सोल्जर्स को सप्लाई, मतलब बहुत कम सोल्जर्स मर रहे थे, आर्मी बहुत कम थी, तो उनको बोला गया कि तुम सोल्जर्स जो है वो भेजो. एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब जहाँ पे कॉलोनियस हैड फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन, मतलब फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का क्या होता है कि जहाँ पे जो रूल कर रहा है तो उन्होंने फोर्सफुली पीपल को बोला कि तुम्हें आर्मी ज्वाइन करना है, दैट इज़ फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. कि उनको विलेजेस में पीपल को अगर नहीं आर्मी में जाना है तो भी फोर्सफुली दे वर टोल्ड टू ज्वाइन दी आर्मी, राइट. जिसकी वजह से वो पीपल ऑफ द विलेजेस उनको भी बहुत गुस्सा आ रहा था. देन इन 1918 एंड 1919 एंड 1920 से 21 क्रॉप्स फेल्ड हो गए इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, क्रॉप्स फेल्ड हो गए, एंड जिसके वजह से शॉर्टेजेस ऑफ फूड जो है उनको वो बैर करना पड़ा था. उसके बाद एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो है दैट दे हैव टू बेयर इट. According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished मतलब गायब हो गए, गायब होना मतलब मर गए थे, और एनी अदर रीज़न एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड द एपिडेमिक. जैसे अभी हो रहा है दैट केसेस हैव ऑलरेडी इंक्रीज्ड अबाउट 10 लाख 11 लाख, राइट. एंड द डेथ रेट जो है वो भी बहुत बढ़ रहा है. तो वो टाइम में भी एपिडेमिक की वजह से और फेमाइन्स की वजह से, फेमाइन क्या होता है, शॉर्टेजेस ऑफ फूड, राइट, नो फूड नो वाटर नथिंग, तो ये फेमाइन्स की वजह से ऑल्सो पीपल डाई ड्यू टू स्टारवेशन. सो ड्यूरिंग दैट टाइम 12 to 13 million people died because of this epidemic and famines. People hoped कि ये जो their hardship would end after the war was over. उनको लगा कि आफ्टर 1918 उनकी जो हार्डशिप इतना स्ट्रगल था वो ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ. अब वो टाइम पे अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल. तो कौन से नए लीडर, तो आएंगे अभी महात्मा गांधी जी. एक न्यू लीडर जो है वो आए एंड उन्होंने एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल के बारे में पीपल को बोला. दैट वी विल सी, दैट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. इन जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. हमें पता ही है वो साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, उनकी लॉ की पढ़ाई करने के लिए, राइट. एंड स्टार्टेड द मूवमेंट सत्याग्रह. एंड ऑलरेडी ही हैव started this thing in South Africa. He applied this thing in South Africa also, because in South Africa also racial discrimination was there. So after returning from South Africa he came to India और उन्होंने सत्याग्रह की बात की. सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. सत्याग्रह मतलब उसमें तो उनका एक ही बोलना था कि जो ये आइडिया है सत्याग्रह का, उसमें पावर ऑफ ट्रूथ होना चाहिए, नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. सच होगा तो ही चलेगा, अदरवाइज नथिंग विल हैपन. एंड इट सजेस्टेड टू थिंग्स, दैट इज़ नॉन वायलेंस, राइट. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के पाथ पे गांधी जी चलते थे. It also suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. जैसे मैंने बोला नॉन वायलेंस में वो बिलीव करते थे कि अगर कॉज वॉज ट्रू कि हाँ चलो उनकी गलती है, सामने वाले की गलती है, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो भी फिजिकल फोर्स हमारे पास वेपन्स और फाइटिंग की कोई ज़रूर नहीं है टू फाइट द ऑपरेसर. ऑपरेसर मतलब जो कर रहे हैं खराब, उनके सामने लड़ना ही डायरेक्टली, वो ही एक हमारे पास रास्ता नहीं है. विदाउट सीकिंग वेंगियंस, वेंगियंस मतलब क्या, पनिशमेंट या तो हार्मिंग और बीइंग अग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल. उन्होंने क्या बोला कि पनिशमेंट देने से या किसी को हार्म करने की जगह पे या तो अग्रेसिव होने से, बहुत गुस्सा होने की जगह पे एक सत्याग्रही अगर हो वो बैटल जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस से भी वो बैटल जीत सकता है. एंड दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्सर्न्स ऑफ द ऑपरेसर. कैसे,
और ये हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ही ये पॉलिसी है कि क्या करना है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड, उनको सच उनके मुंह से निकलवाना है। ऑपरेसर कौन है वो तो पता चल गया, जो अनफेयर वे से ट्रीट कर रहा है वो है ऑपरेसर। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ, उनको पता चलना चाहिए कि सच क्या है। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ, उनके मुंह से सच बुलवाने के जगह पे उनको दिखना चाहिए कि एक्चुअली सच क्या है, राइट। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्प, लाइक सच के रास्ते पे हम चल सकेंगे एंड हमारा धर्म जो है वो भी जो है वो वेस्ट नहीं हो सकता है, राइट। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट, उन्होंने बोला कि नॉन वायलेंस से हम पूरे इंडिया को साथ में कर सकते हैं, विच विल यूनाइट ऑल इंडियन। सो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया इन वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। 1916 में ही ट्रैवल टू चंपारण, दैट इज़ इन बिहार। रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट चंपारण इन बिहार, ये मैप में आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही आता है, मतलब लास्ट ईयर्स में मैंने देखा है उसमें एवरी टाइम दे आर आस्किंग चंपारण इन बिहार, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। दे विल जस्ट गिव यू दैट लोकेट द चंपारण, या तो दे विल गिव दैट in 1916 गांधी जी ट्रैवल टू, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज इन चंपारण, ओके। क्यों गए थे चंपारण? टू इंस्पायर द पीजेंट्स को, वर्कर्स को, टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ऑप्रेसिव जहाँ पे उनको फ्रीडम नहीं दी थी कि दे वर नॉट अलाउड टू कम आउट ऑफ द प्लांटेशन एरिया। देन 1917 में ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गए थे गुजरात में, तो वहाँ पे पीजेंट्स को सपोर्ट किया था। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक, द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। तो खेड़ा में क्या प्रॉब्लम था कि क्रॉप फेलियर की वजह से और एपिडेमिक की वजह से क्या हुआ था कि जो खेड़ा के पीजेंट्स हैं वो लोग टैक्स नहीं पे कर पाए थे, एंड वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि रिवेन्यू कलेक्शन उसको रिलैक्स कर दिया जाए, मतलब वेव किया जाए उनका जो भी ये टैक्स है वो। तो उसके लिए गांधी जी ने फिर वहाँ पे सपोर्ट किया था पीसेंट्स को। फिर 1980 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट। क्यों? अमॉन्ग्स कॉटन मिल वर्कर्स जो थे वहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट इज द रॉलेट एक्ट। नाउ in 1919 महात्मा गांधी लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट, मतलब उन्होंने सोचा कि नेशन वाइड पूरे कंट्री में सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट करना चाहिए अगेंस्ट ये रॉलेट एक्ट विच वॉज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। ये जो है दिस एक्ट हैज़ बीन हरीडली पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इंडिया के पीपल ने उसको अपोज भी किया था, लेकिन तो भी ब्रिटिशर्स ने उसको पास करवा दिया था ये एक्ट जो था। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स। ये क्या था रॉलेट एक्ट में? सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इफ़ एनी पीपल लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं ब्रिटिशर हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ खराब किया, तो विदाउट लिसनिंग डायरेक्टली ही वॉज सेंट टू जेल। या तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें ये करना है, और अगर उसने मुझे मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा, तो डायरेक्टली दे वर सेंट टू जेल। इतने पावर्स गवर्नमेंट को मिल गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड डिटेंशन, मतलब पनिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, एंड विदाउट ट्रायल उनको चांस भी नहीं मिलता था टू प्रूव देमसेल्व्स। 2 years के लिए उनको डायरेक्टली डिटेंशन पनिशमेंट। तो महात्मा गांधी ने ही वांटेड दैट नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज, एंड इट उन्होंने बोला कि हम हड़ताल स्टार्ट करेंगे ऑन 6 अप्रैल। स्ट्राइक मतलब 6 अप्रैल से हम हड़ताल स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या हुआ, तो रैलीज जो है, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। जो महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे तो रैलीज उन्होंने ऑर्गेनाइज की। वर्कर्स जो थे वहाँ के, दे वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन बिकॉज वर्कर्स वर नॉट वर्किंग। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज। अपसर्ज मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट बाय क्राउड।
एंड स्कैड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवेज एंड और ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर रेलवे शॉप्स वर्कशॉप्स और वो सब बंद हुए तो पूरी सिस्टम जो है इट वुड बी डिस्टर्ब्ड, राइट। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो उन्होंने सोचा कि ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ बैन करना चाहिए, नेशनलिस्ट को कुछ तो करना चाहिए। सो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। वहाँ के लोकल लीडर्स को उठा लिया था अमृतसर से और महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर नहीं कर सकते, मतलब ही वॉज बैड, ही वॉज नॉट अलाउड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। अब 10 अप्रैल को क्या हुआ, द पुलिस इन अमृतसर दे फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। एक प्रोसेशन जा रहा था, रिलीफ और ऑर्गेनाइज्ड, तो उसमें पुलिस जो थी उन्होंने फायर किया, जिसमें अटैक किया ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस पे। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। जनरल डायर आया एंड उसने कमांड दिया एंड उसके आगे जो है स्टोरी, जो मेन स्टोरी स्टार्ट होगी 13 अप्रैल की, दैट वी विल सी बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग।